Hello students, my name is Jyoti Sharan. I am your biology teacher. In the last we have gone through the first chapter in which you have studied all about the life processes, that is the vital metabolic reactions in the human beings, that is digestion of food and respiration, circulation and the excretion. You already have read all about these reactions, and now we are going to start our second chapter, that is control and coordination. Okay, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंडर हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एज वेल एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. In plants we will study about the plant hormones and the plant movements, and in animals in the control and coordination we will study about the nervous system and the endocrine system. Nervous system, that is consisting of various types of nervous system, that is central nervous system, peripheral nervous system and autonomous nervous system. Okay, and endocrine system, various endocrine glands are present in human body, and they secrete hormones, and we also discuss about the hormones secreted by the these glands. Okay, so first we start with the control and coordination in plants. In plants, like animals, as such no nervous system exist. All the control and coordination is carried out by action of certain chemicals, which are also called as chemical messengers, and we well know them as hormones. Okay, so if we discuss about the plant hormones, so first of all we will discuss about the auxin. Auxin is a plant hormone which is responsible for the growth of plant. Okay, सब पहले मैं ये बता दूं कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर. प्रोमोट जो ग्रोथ को प्रोमोट करेंगे, इनकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, एंड इनहिबिटर विच विल इनहिबिट और स्टॉप द ग्रोथ. ओके, सो ऑक्सिन इज़ ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन. सो ऑक्सिन है ये सेल डिवीज़न सेल एनलार्जमेंट और सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इवन ऑक्सिन है एक और फिनोमिनन होता है प्लांट्स में, फोटोट्रॉपिज्म, उसमें भी इसका रोल होता है. ओके, एंड second hormone is the cytokinin. Cytokinin है, it is also a growth promoting hormone. It is responsible for the cell division and the cell elongation. Okay, so it also promote the growth of the plants. The third hormone is the gibberellin. Gibberellin is we call it also as gibberellic acid. Okay, gibberellin, it is responsible for the growth of stem, and it is also responsible for breaking the seed dormancy and help in germination of seed, and it is also a growth promoting hormone. And one hormone is abscisic acid, that is a growth inhibiting hormone. Okay, it inhibits the growth of plant, and it retard the growth, so it is a growth inhibiting hormone. Okay, one hormone also exists in the plants, that is the ethylene. Ethylene, it helps in the ripening of fruit. When an ovary matures and it is about to ripe, then ethylene comes in action, and ethylene है ये फ्रूट की राइपनिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, अब अगर हम प्लांट की मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो प्लांट के अंदर दो टाइप की मूवमेंट्स होती हैं. वन इज़ ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड वन इज़ नास्टिक मूवमेंट्स. ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो होती हैं कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर स्टिमुलस है, तो इससे पहले हम ये समझते हैं कि स्टिमुलस क्या होता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कोई भी चेंज आता है, सडन चेंज अगर हम इसको मान के चले, तो वो स्टिमुलस कहलाता है. यानी कि वो चेंज जो किसी ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रिगर करे, उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्साइट करे, वो चेंज स्टिमुलस कहलाता है. तो
किसी भी अगर कोई प्लांट्स की कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट है, अगर वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो रही है, देन इट इज़ टर्म्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट, एंड डायरेक्शनलेस मूवमेंट is called as nastic movement. So first we discuss about the tropic movements. The tropic movements में आती हैं हमारे पास 4 टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज़ फोटोट्रोपिज्म, सेकंड इज़ हाइड्रोट्रोपिज्म, थर्ड इज़ जियोट्रोपिज्म, एंड वन इज़ थिग्मोट्रोपिज्म. सो फोटोट्रोपिज्म में जैसे कि फोटोन यूज़ हो रहा है, तो स्टिमुलस है वो लाइट होगा, यानी कि लाइट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट में अगर कोई मूवमेंट होती है, दैट इज़ टर्म्ड एज फोटोट्रोपिज्म. ओके, जैसे ही अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लांट को किसी शेडी एरिया में रखें और उस पर किसी एक ही डायरेक्शन से अगर हम लाइट डालेंगे, तो प्लांट है लाइट की डायरेक्शन में बैंड हो जाएगा. दैट इज़ टर्म्ड एज फोटोट्रोपिज्म. ओके, जो प्लांट स्टेम है, इट शोज द positive phototropism, while the root height shows negative phototropism. Next is hydrotropism. Hydrotropism यानी कि in the direction movement या growth of plant part in the direction of water. ओके, अगर हम हाइड्रोट्रोपिज्म में बात करें तो शूट है, इट शोज अ नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि शूट है वो अबाउ द अर्थ ग्रो करता है और वो वाटर से अवे ही ग्रो करता है. एंड द रूट इट शोज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. ओके, नेक्स्ट इज़ आवर जियोट्रोपिज्म, यानी कि अर्थ के जो अर्थ है उसके वो स्टिमुलस की तरह अगर एक्ट कर रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में प्लांट है वो कैसे ग्रो करेगा, या अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उसके रिस्पॉन्स में कैसे ग्रो करते हैं. द शूट है, इट अगेन शोज द नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, एंड द रूट हाइट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. नेक्स्ट इज थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू वी कैन से टच. is in this type of tropism, when a plant part touches any surface or a particular body, then it grow around according to that particular subject या object. For example, when tendril of a climber touches a pipe or a rope, then it climb along the rope. That is an example of thigmotropism. And the clinging of a climber along a rope or a pipe is an example of thigmotropism. Okay, जो मेनली क्लाइंबर्स हैं वही थिग्मोट्रोपिज्म है वो शो करते हैं. वन टाइप ऑफ ट्रोपिज्म इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन प्लांट, दैट इज़ कीमोट्रोपिज्म. कीमोट्रोपिज्म है इसका अगर हम कि एक पर्टिकुलर किसी केमिकल की डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो इसका अगर हम टिपिकल एग्जांपल लें, देन दैट इज़ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल. यानी कि जैसे ही ओव्यूल की ओर जैसे ही पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन यानी कि जब एक मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन है वो फीमेल फ्लावर या पोलन ग्रेन से सिंपल फ्लावर के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक रीच करते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज पॉलिनेशन. जैसे ही पॉलिनेशन होता है उसके बाद पोलन ग्रेन से वो जर्मिनेट करते हैं और एक ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ टर्म्ड एज पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब है ये प्लांट जो फ्लावर है उसकी ओवरी के अलॉन्ग, उसके स्टाइल के अलॉन्ग रन करती है और ओवरी में जाके ये ओव्यूल तक पहुंचती है. ओके, अब जो कीमोट्रोपिज्म है इसमें हम टिपिकल एग्जांपल है वो पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन की जो डायरेक्शन है उसका एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं. देन कम द नास्टिक मूवमेंट. नास्टिक मूवमेंट्स है वो डायरेक्शनलेस मूवमेंट होती हैं, यानी कि इन पर स्टिमुलस की डायरेक्शन का कोई असर नहीं होता है और ये बिना स्टिमुलस की डायरेक्शन के होती हैं, इनकी डायरेक्शन के इंडिपेंडेंट होती है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी टच अ टच मी नॉट प्लांट, देन इट immediately shrinks or shuts its leaf. Okay, that it is an example of नास्टिक मूवमेंट्स. यानी कि जैसे ही हम टच में नॉट प्लांट है उसे टच करते हैं तो उसकी लीव्स है वो एकदम से सिकुड़ जाती हैं. ओके, ये हमारा जो नास्टिक मूवमेंट्स है इसका एग्जांपल है. द ऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट इज़ परफॉर्म्ड बाय द
हार्मोन्स, यानी कि इट इज़ ऑल अबाउट द एक्शंस ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स हैं सिर्फ वही प्लांट्स में सारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, इनके पास एज सच कोई नर्वस सिस्टम है वो नहीं होता है। ओके, बिकॉज प्लांट है उनका मोड ऑफ लाइफ है वो एनिमल्स के कंपेरिजन में काफ़ी सिंपल होता है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स।